بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير وبك نستعين. يا فتاح يا فتاح، اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین. آج جو ہمیں کام موصول ہوا ہے اس میں سب سے پہلے کن کا کام ہے بھائی؟ یہ مس فاطمہ کا ہے؟ یہ کس کا ہے یہ؟ بہت اچھا، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تسلسل کے اعتبار سے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہاں سے ہم شروع کریں اور پھر اس کو لمبا کر کے یہ را کو ایسے جوڑ دیں تو یہ والی ترکیب اور بہتر ہو جائے گی. لفظ اللہ کو تھوڑا سا ہم بڑا کرتے ہیں تاکہ درمیان میں آ جائے. ویسے بھی ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بہت خوب. یہ تو بہت اچھا ہے. اس میں جو ایک دم سے یہ نوک بن رہی ہے، ذرا یہاں قلم اور سموتھلی چلے گا تو پھر وہ زیادہ بہتر لگے گا. اس طرح مس جویری کا کام ہے وہو الغفور الودود. اب یہاں پر وہو جیسے اس کی آنکھ بند ہو گئی ہے، دائرے بڑے ہو گئے. اب اس کا جوڑ اس کے ساتھ تو ٹھیک ہے، لیکن غفور کے بعد را کہاں ہے؟ اور ودود یہ دال، دال کی جگہ آپ نے را بنا دیا واو کے ساتھ، را کو جوڑ دیا. دال اس طرح سے نہیں جوڑتا. تو ذرا اس کو دیکھیے گا، یہ را ہو گیا. اس طرح سے نیچے کر کے جو جڑتا ہے نا وہ واو اور را کہلاتا ہے. اب یہ کھل گیا، اس کو قریب سے لے کے آئے. اور یہ ویسے بھی ایسے ہو سکتا تھا کہ اگر کھینچے بغیر اس کو ہم لکھتے تو یہ زیادہ بہتر تھا. اس کا میں بتاتا ہوں. یہ یا اور دال نہیں لگ رہا بالکل آخر میں. سیاحدین، یہ ایک شوشہ بنا کے پھر دال کو اٹھانا ہے، یعنی سیاح، پھر دال ایسے اٹھے گا. یہ بیچ میں ایک اٹھان سی آئے گی تاکہ وہ دال والی شکل میں. بہت خوب بہت خوب. یہ اس کو بھی جوڑا جا سکتا ہے ان نا کو. میں یہ اب درمیان میں یہ جو کشش ہے نا، یہ زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہی. اب یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ آخر میں بھی کشش ہو تاکہ دو کششیں وہ ایک ساتھ آ جائیں. اس کو میں کر کے دکھاتا ہوں پھر. اب یہاں پہ آپ نے یہ ٹھیک لکھا کہ یہ ایک شوشہ زیادہ ہو گیا مجید. یا اور دال ٹھیک نہیں ہے. واؤ کو سطر سے نیچے لے کے آنا ہے، غفور کو تھوڑا نیچے لے کے آئے، واؤ اور را. اور یہ واؤ را پھر آپ نے دیکھیں آخر میں واؤ اور دال آنا تھا، ودود ودود. واؤ، واؤ دال، را بنا دیا. اور ذو العرش المجید بہتر ہے، بہتر ہے. لیکن اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جاتا ہے میں بتاتا ہوں. ودود میں مسئلہ ہو رہا ہے عرش، یہ کافی عرش پر چلا گیا. اور یسترون کا نون رہے، تو کی ڈنڈی سین کو تھوڑا سا کھینچے، یہ بہتر ہے. آپ کی چونکہ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہمارے گروپ میں، تو آپ پہلے مزید مشق کریں گی روایتی خط رقہ پر، پھر ماڈرن کی طرف بڑھائیں گے ترکیب. لیکن
चूंकि एक टास्क दिया गया था तो उस टास्क को आपने अच्छे से निभाया है हमेशा। ये सादिया का काम है, बहुत खूब। यहाँ भी आपने वही गलती की है जो अभी इस जुवेरिया ने की, कि ये वाव और रा को वाव दाल बना दिया आपने। बाकी ये ठीक है। ये वाव रा है भाई, ये दाल नहीं है। आप समझते हैं कि ये उठान की वजह से दाल बन गया, तो ये उठान का दाल नहीं है। ये वाव और रा का जोड़ है। उठान तो उस दाल में बनती है जिससे पहले कोई लफ्ज जुड़ा हुआ हो। अब इससे पहले वाव जुड़ा हुआ है, लेकिन वो उस तरह से नहीं जुड़ा हुआ जिस तरह दाल से पहले जुड़ा। ये रा और वाव का एक कनेक्शन है बस। वाव और रा के लिए ये शक्ल खास है। ये वाव और दाल कभी भी नहीं हो सकता। दाल वाव के साथ कभी मिल ही नहीं सकता। दाल मुफरदा वाव के साथ कभी मिल ही नहीं सकता। ठीक है। इसकी जगह अगर ऊपर नुक्ते लगाते हैं, ये तो दीवानी वाला शेन बन गया। या फिर इसके ऊपर ऐसे नुक्ते लगाते हैं, ऐसे। और बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो आपकी मस्जिद की तरकीब बहुत अच्छी है। बारकल्लाहु फीक। मुमताज माशाल्लाह। अच्छा जी, मिस लाइबा का काम है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। इसकी इसकी कशिश को जरा सा संवारें। तो डगमगा गई ना, जैसे ये नीचे वाली आई है, ठीक। अब से रात के अलिफ को स्वाद के ऊपर ना लें, थोड़ा सा साइड पे करें ताकि वो तो ना लगे। मुस्तकीम में मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ शोशे कम है। या नहीं है तो फिर वो नजर नहीं आ रहे शायद। वो लाइटिंग की जो रिफ्लेक्शन है ना, उसकी वजह से। बाकी काम बहुत आला है माशाल्लाह इस बात को। बहुत आला भाई, मिस लाइबा ने हमें ज्वाइन किया है। काम बहुत आला है आपका माशा। बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी, वहुवल गफूरुल वदूद जुल अर्शिल मजीद। सब ने लगता है मशवरा किया था कि गलती एक साथ एक जैसी करनी है। तो ये ठीक नहीं है। तो आप खुद सोचें, यहाँ ये वाव और रा है, तो नीचे कैसे वाव दाल हो सकता है? तो वदूद की जगह वरूर लिखा हुआ सकता। जुल अर्श। अब लाम और आइन खींचा तो है, लेकिन ये इतना खिंच गया, मजीद का मीम के बाद जीम के दरमियान का हिस्सा, जुल अर्श के लाम और आइन का हिस्सा इतना खिंच गया कि वो सीन लग रहा है, ऐसे सीन। यानी इसमें देखा जाए तो तीन नुक्ते आते हैं ना। और इसमें देखा जाए तो तीन नुक्ते से ज्यादा आ रहा है, तो ये सीन लग रहा है। तो इसको इतना नहीं खींचना कि लफ्ज की अपनी शक्ल ही खराब हो जाए। कंपोजिशन में इस चीज का भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। फिर बाहम फासले वगैरह भी ठीक हो और जाविये भी ठीक हो, तब जाकर कंपोजिशन में खूबसूरती आएगी। ऊपर से शुरू कर सकते हैं, नीचे से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सारी बात ही अल्लाह रब्बुल इज्जत की हो रही है। वहुवल गफूरुल वदूद, उसी की बात हो रही है। वही गफूर वदूद है, वही अर्श वाला है। तो उसी की बात हो रही है, तो उसी के सिफाती नाम आ रहे हैं, तो ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन है माशाल्लाह, बारकल्लाह। हम्म, ठीक। बहुत अच्छे। ये जो बीच में आयत लिखी है ना, मैं इसे भी ये चेक करूंगा। अब ये आपने इसको काटा है, इसको काटा है, बीच वाली शक्लें, अब वो शुरू वाली शक्लें बीच में लिख दी हैं। बा अलिफ बा को थोड़ा कम करें। अच्छा जी, ठीक है।
है ज़रूरी तौर पर अलिफ लाम को न जोड़ें, अलग ही रखें कुछ। कुल्ली शै इन हमजा नीचे आएगा, तो आपको थोड़ा छोटा करें। अय्युकुम अहसनु अमला, यहाँ थोड़ा मोटा करें इसको। ये वाव बिल्कुल उर्दू वाला वाव हो गया, पा नजर ही नहीं आ रहा है इसमें। अलिफ लाम तो छोड़ गया, तो वाव रा जोड़ना ही है तो इस तरह से जोड़ दें भाई, तो ज्यादा अच्छा लगता है। इसको ना ही जोड़ें, इसको उठान की सूरत में बनाए, नौकीला ना बनाए। इसको भी उठान की सूरत में भी मसावी ऐसे। जीम वाव के साथ, ये वाला जीम आता है क्या? वाव जुर्हमी में से है क्या? या तीन में ये वाला शोशा ना बनाए, उठान बनाए। यहाँ भी उठान बनाए। जीम का नुक्ता, ये क्या बना है? यहाँ भी ऐसे कर दें, मैयजू, सिर्फ एक शोशा होगा, दो डाल दिए। मगर वहीस नुक्ता लगाना है वहीस का, उसकी उठान बनानी है नून और ता की। यहाँ नजीर है, नजीर लिखा आपने, जा लिखा, दाल है दाल, जैसे दूसरे में है। अंतुम में उठान होगी, यहाँ भी उठान होगी, यहाँ भी उठान होगी। हा और काफ छोटे हो गए, यहाँ भी उठान होगी। अस्सलाम सर। उठान होगी। अलिफ छोड़ दिया यहाँ पे, अविज करूँ। शोशा बहुत नोकीला हो गया, उठान बनाए। और ऐसे ज्यादा अच्छे हैं, यहाँ उठान बनाए। पतला हो गया ये वाला शोशा नहीं आएगा। तमूर ऐसे है, ये वाला तात है। तो ये भी मोटी मोटी मैंने गलतियां निकाली हैं, इनको ठीक करें, खत में इसमें पक्का करें और फिर जाके इसको कंप्लीट कीजिएगा। जी सर। बहुत अच्छा तो माशा। मैंने बस ट्राई यही किया था कि गलतियों को थोड़ा सा पता चले हाथ। बताता हूँ, लिख के भी बताता हूँ। ये बहुत तिरछे हो गए भाई, बहुत तिरछे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा सीधा करें, बहुत ज्यादा तिरछे, ये दीवानी वाले रुख बना दिया आपने, तो आपको थोड़ा नीचे लाएं, दो नुकते ऊपर, तो आपको थोड़ा मोटा करें। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ये एक शोशा इजाफी हो गया। तमसस हो, यहाँ नुकता नहीं है, ठीक है। बाकी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, अल्फाज बहुत तिरछे जा रहे हैं, बहुत तिरछे जा रहे हैं। लाइन नीचे की तरफ गिर रही है, लाइन ड्रॉ करके लिखें, नीचे की तरफ गिर रहा है सब, दीवानी वाले एंगल्स बन रहे हैं। ये नुक्ता या यहाँ लगाएं या फिर बहुत को ऐसे बनाएं, इसका भी ख्याल रखें। ठीक है जी, गलतियों को देखें, नोट करें, काम अच्छा है माशाल्लाह। काली स्याही से लिखें जरा।
इतने लंबे मैसेज स्क्रीन से गायब हो जाते हैं, लाइव पढ़े पढ़े नहीं जाते। सर मैं कह रही थी कि अभी आपने कहा था ना कि दाल उस तरह नहीं बनेगा जिस तरह हमने बनाया है। पर आपने जब अलहम्द सूरह फातिहा लिखी थी तो उसमें ना अलहम्द में और नाबुद में आपने इसी तरह का दाल बनाया था। देखें, मैं आपको समझा समझा के थक गया हूँ सबको। क्या फिर मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा? अब ये दाल है ना, ये दाल मीम के साथ जुड़ा हुआ है। ये लफ्ज है हम्द, यानी मीम और दाल एक साथ जुड़े हुए हैं। क्या वदूद में वाव दाल के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं अल सर। वदूद में नहीं जुड़ा हुआ ना। तो अब इसको, ये तो फितरी तौर पर मीम और दाल ऐसे था, तो इसको तो नहीं छेड़ा ना हमने। हमने तो इसको छेड़ा, इसकी जगह ये कर दिया। तो ये स्ट्रोक तो इसका पहले से है, फितरी है मीम के साथ जुड़ने की वजह से। अब दाल तो वाव के साथ जुड़ेगा नहीं ना, जुड़ नहीं रहा। तो दाल वाव के साथ कभी जुड़ता भी नहीं है। वो जो ये जुड़ा हुआ है, ये ये दाल नहीं है। असल में ये वाव और ये वाला रॉ, इसको एक साथ मिला दिया और इस हिस्से के साथ इसको अटैच कर दिया, तो ये वाव रा हो। ये वाव और ये रा, तो इसको मिला दिया तो फिर ये चीज बन गई। अब ये रा है, ये दाल नहीं। वाव, दाल पीछे किसी हर्फ के साथ, दाल जब अकेला हो तो किसी हर्फ के साथ जुड़ता नहीं है। अगर जुड़ेगा भी तो ऐसे जुड़ेगा, यानी वाव को हम ऐसे करेंगे और दाल को ऐसे। बात समझ आ रही है? जी ये सर समझ आया। ये वाला रा है। इसको वाव के साथ पीछे अगर जोड़ा तो फिर भी ये रा ही रहेगा, ये दाल नहीं कहलाए। क्योंकि ये उठान नहीं है, ये वाव और रा का जोड़ है, ये उठान है। तो ये है वो बात। तो वदूद में अगर आपने इसको जोड़ना भी है तो फिर इस तरह से जुड़ेगा कि ये वाव और ये दाल, फिर वाव फिर दाल, ये होगा बस। अब समझ आ गई आपको? जी सर अब समझ आ गई। हम्म, चलें, शुक्र है सबको समझ आ गई होगी। अब जैसे कि ये लाइन है, तो आप लोग बहुत ही ज्यादा वाव को नीचे ले आते हैं और बिल्कुल ऐसे बनाते हैं, यूं ऐसे गोल कर देते हैं। भाई इतना ये नहीं है, दाल ऐसे ही आता है वाव, इसे तिरछा करके ऐसे आएगा और ये एक नुक्ता नीचे आएगा। ये इसके साथ ऐसे टच हो गया। ऐसे टच कर दिया। और अब ये वाव और रा, ये वाव और रा है, ये वाव रा है। अल वदूद को फिर हम ऐसे जोड़ें।
दाल और वाव को जोड़ने का एक तरीका आप लोगों ने उस्ताद इज्जत के कुरासे में पढ़ा था, कोई मुझे बता सकता है? किसी ने लिखा नहीं है तो शायद आप लोगों के नजरों से भी ओझल हो। ये बता सकता है कि दाल और वाव कैसे जोड़ते हैं? इसकी मिसाल वहाँ क्या लिखी हुई थी, कोई बता सकता है? ढूंढा आपने लेकिन नहीं मिला। ढूंढने से तो मिल जाती है चीज भाई। आपने ठीक से ढूंढा नहीं होगा। मैं ढूंढ के बताऊं आप लोगों को? हम्म, आप लोग देखें दौलत का लफ्ज जहां लिखा हुआ है, दौलत। मुझे किताब मिल रही है। हाँ, मुझे इश्तबा हो गया। मैं समझा वो खत रुका में, ये खत दीवानी में। तो ये मेरी गलती है भाई, माफ कीजिएगा। दाल और वाव का कोई जोड़ नहीं है। अब चलो, आज फिल मजीद ऐसे हो गया। अब इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडर्न उसमें लिखें तो ऐसे करके ये हो सकता है।
बस अपने आप को कंफ्यूजन में डालें। मॉडर्न के कुछ मैंने आप लोगों को इस तरह से बता दिए कि जैसे जैसे अब ये मॉडर्न में भी आ गया और थोड़ा सा ट्रेडिशनल में वेरिएशन भी आ गई। तो वो जब वेरिएशन आती है तो वो खुद ब खुद थोड़ा सा मॉडर्न लगता है खतरों का, वरना आम सिंपल ही सही लगता है। इसको जरा नोट कीजिएगा। बाकी जैसे इलैहिकल बस्सरू आपने लिखना है, तो बजाय इसके कि जिस तरह में साइमा ऐसे करती है ये नोक बना देती है, तो उसकी उठान, यहाँ जहाँ नोक बन रही है वहाँ ये उठाना है। रुजूमन जैसे ये आ गई। बिअसा ऐसे बिअसा। मसीर पहला शोशा और दूसरी उठान। अब खज़नतुहा ये ये उठान। अलम यातिकुम नज़ीर, नून और ताल। इन अंतुम भी ऐसे कबीर में ये करके पहला शोशा दूसरी उठान। बिजम बिहिम में भी ये नून है तो ये बा। सुहकन हा को वाज़े करके काफ की आँख खोले। औ इजहरू भी। ये गलतियां आप नोट करें, इसको बेहतर करें। पिछली क्लास में हमने क्या बताया था आपको? सर आपने वो बटर पेपर पे काम को ओरिजिनल किस तरह पेपर पे ट्रांसफर करना है वो बताया था। हम्म, सही। अब मिसाल के तौर पे हमने कोई चीज मुकाहर पेपर पे लिखी, तो मुकाहर पेपर पर लिखने से पहले
ये जैसे मुकहर के ऊपर है ना। अब इसको मैं पहले तो अकीक पत्थर से, मुझे जहाँ लिखना है मैं अकीक पत्थर से वहां पर इसको बर्निश करूंगा। ये अकीक पत्थर है मेरे पास, इसका दस्ता है। मैं इसको से रगड़ूंगा और जरा सॉफ्ट करना है, जरा इसकी गैर हमवार सतह हमवार करनी है। अंडे की जो डिसबैलेंसिंग है उसको जरा स्मूथ करना है। अगर आपके इससे बर्निश करने से कोई निशान पड़ रहे हैं मुकहर पे, तो उसके ऊपर कोई पेपर रख के या बटर पेपर रख के भी इसको मुकहर बर्निश किया जा सकता है। और अगर आपके पास हकीक पत्थर या किसी किस्म का कोई सॉफ्ट पत्थर ना हो, तो फिर आप कोई भी ऐसे ही मार्बल का पीस लेके या फिर अंगूठी वगैरह, उससे भी अंगूठी के पत्थर से, या फिर शीशे का जो पीने वाला गिलास है उसकी जो ऊपरी जानिब है, पीने वाली साइड है, उससे भी उसको, जैसे कि ये साइड हो गई, उससे भी आप उसको फर्निश कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके ऊपर लिखने से पहले हमने इसके ऊपर पाउडर लगाना है। पाउडर, कोई भी टेल्कम पाउडर, अगर आपके पास वो नहीं है, जैसे इस वक्त मेरे पास खत्म हो गया है, तो मैं चौक लेके इसका बुरादा इस पे छिड़क दूंगा और फिर इसको टिश्यू से साफ कर दूंगा। तो ये होगा कि अंडे की जो चिकनाई है वो जो रूखेपन में तब्दील हो जाएगी, और हमारा पेपर है हमारी स्याही को अच्छी तरह जज्ब करेगा। अब इसके ऊपर ट्रेसिंग भी कर सकते हैं लाइट टेबल के जरिए से। मैं डायरेक्ट लिख के आपको जरा ट्रेसिंग फिनिशिंग का तरीका समझाता हूँ। जैसे कि इस पर जो लिखाई होती है ना, उसका अलग ही मजा है।
जैसे कि ये अभी आपको अच्छा लग रहा होगा इस पे लिखा हुआ इसमें, जैसे कि यहाँ थोड़ा सा मोटा हो गया, ये यहाँ थोड़ा सा स्याही की वजह से मोटा हो गया, ये जगह जरा सी डिसबैलेंस है। तो अब मैं इसको जरा इसकी टचिंग फिनिशिंग करूंगा। टचिंग फिनिशिंग के लिए जरूरी है कि आपके पास कुछ इस किस्म के टूल्स हों जिनसे आप बारीकी से इसकी नज़ाफत, नज़ाफत यानी सफाई, इसकी तरतीश यानी फिनिशिंग, अरबी में तरतीश, तरतीश, उर्दू में नज़ाफत, या अरबी में भी नज़ाफा कहते हैं इसको, इंग्लिश में हम इसकी फिनिशिंग वगैरह। तो उसके लिए जैसे कि मेरे पास आप लोग मुझे ज़रा 2 से 3 मिनट दीजिएगा, मैं वेट कीजिएगा ज़रा।
जी। तो अब जैसे कि ये शीशम के पेन होल्डर आता है, साथ निब्स वगैरह आती हैं, तो उसमें एक बिल्कुल बारीक वाली निब होती है, बिल्कुल जो पॉइंटेड, यानी बिल्कुल खुलने वाली नहीं। एक अंग्रेजी वाली होती है, वो ऐसे दबाने से खुल जाती है, खुलने वाली नहीं। इसको ऐसे होल्डर में फंसा के, अब ये बिल्कुल बारीक जो निब होती है, उस किस्म की निब्स मिल जाती हैं खुले में भी। तो इससे बिल्कुल बारीकी से अगर मैं करीब करके आपको दिखाऊं, तो जहां कोई मिसिंग है ना कोई चीज, तो वहां इसकी से टचिंग करते हैं। जैसे अगर मैं देखूं कि यहाँ मुझे लग रहा है कि बाल बराबर जगह, ये मैंने इसकी टचिंग कर दी इंक में डिप करके, इसको इंक में डिप करके, ये चीज, इस ये जो काम होता है ना बिल्कुल बारीकी का, ये आप वो जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उससे भी कर सकते हैं, ताकि बिल्कुल बारीकी से आपको नजर आए। और यहाँ मैं देखूं अगर कहीं हल्की सी टचिंग, तो बिल्कुल बारीक कलम भी आप इसके लिए बना सकते हैं, बिल्कुल बारीक ब्रश से भी आप ये काम कर सकते हैं। अब जहां 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 अब लफ्ज की ज्यादती है, स्ट्रोक खुले बन गए हैं, तो वहां पर फिर उसकी फिनिशिंग होती है, ब्लेड से उसको खुरचते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ ये लग रहा है कि एक बाल बराबर ये ज्यादा। अब ये देखें, बिल्कुल आराम से इसकी मैंने तफ्तीश कर दी, अब ये ठीक हो गया। यहाँ वाव मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है, ये कर दिया नीचे से इसको। अब ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ये इल्ला मोटा हो गया था थोड़ा सा। जहां जहां आपका कलम थोड़ा मोटा रह गया, लफ्ज अपनी साख्त से ज्यादा जो हिस्से बड़े हो गए, उसको आप ब्लेड से टचिंग कर सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ज्यादा पतला हो गया इस चक्कर में, तो चूंकि मुकहर पेपर है, इस पर स्क्रैच करने से दोबारा इस पर लिखा जा सकता है। तो मैंने इस पर दोबारा टचिंग कर दी।
یہ ہو گیا. اس طرح سے آپ نے اس کو فنش کرنا ہے. تو جب آپ براہ راست جب دیکھیں گے نا سامنے سے تو یہ آپ کو بہت ہی فائن لگے گا. آپ لوگوں کو بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کیسے بنائیں گے مقہر اور کیسے کام کریں گے اس پہ؟ اسکریچنگ بھی ایسے کرنی ہے نا کہ بالکل سیاہی کو اکھاڑنا ہے، پیپر کو نہیں اکھاڑنا. کیونکہ سیاہی گاڑی ہوتی ہے، پیپر کے اوپر اوپر رہتی ہے، اس کو ریموو کرنا ہے، پیپر نہیں پھاڑنا نیچے سے. جب آپ قریب سے دیکھیں گے تو یہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. اس میں لگ رہا ہے اچھا یا نہیں؟ جب فائنل ہوتی ہے چیز پھر بہت لطف آتا ہے. باہر پیپر پہ لکھنے کا الگ ہی سین ہے. تو اب آپ سے میں چیز فائنل مانگ رہا ہوں. اب آپ لوگوں کو بالکل 1 ملی میٹر سے، آپ لوگوں کا ٹاسک کیا ہے؟ 1 ملی میٹر. 1 ملی میٹر کا قلم تراشیں، منگوائیں کہیں سے، جو بھی ہے. آپ کے پاس اگلی ہفتے کے کلاس تک کا ٹائم ہے، 4-5 دن ہے. 1 ملی میٹر کے قلم سے، یا بہت زیادہ کسی کے پاس 1 ملی میٹر نہیں ہے تو 1.5، اس سے اوپر نہیں. کوشش یہی ہوگی جس کے پاس 1 ملی میٹر ہے تو 1 ملی میٹر سے، ورنہ نہیں ہے تو 1.5. یا کسی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، آئی سائٹ کا، تو وہ جو ہے یہ لکھیں گے. اور اس میں جو ہے نا وہ جو سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات وہ آپ نے لکھ کے لانی. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم سے لے کے وهو العزیز الحکیم تک. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات، تو یہ آپ نے لکھ کے لانی ہے فائنل کر کے. اس طرح مقہر پیپر ہے تو مقہر پہ، مقہر نہیں ہے تو کسی اور ایسی شیٹ پہ اچھی چیز پہ لکھے. مقہر ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو پھر مقہر بھی منگوائیں. آپ لوگ آن لائن بھی مل جاتے ہیں، اس لیے کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اور اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کریں، میں آپ کو لنک بھیج دیتا ہوں، آپ ان سے منگوا سکتے ہیں. باقی اس کو فائنل کریں اور پھر مجھے دکھائیں اگلی کلاس میں انشاءاللہ. بالکل سمپل رائٹنگ میں 1 ملی میٹر سے آپ نے سیدھا 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 اچھی طرح اس کو کمپوز کر کے مقہر پیپر پہ فائنل کر کے لکھ کے دکھا. ٹھیک ہے جی، یہ ٹاسک ہے آپ لوگوں. اس کے لیے میں انتظار کروں گا آئندہ کلاس کا، اور آپ لوگوں کے اچھے اچھے کام کا. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا.
मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, फिर अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।